Attention everybody, excuse me. Good evening everybody. Welcome, welcome, welcome. May I now invite His Excellency High Commissioner Shri Kamlesh Prakash ji to please come forward on the stage. May I also invite Bauji Ram Chand Jangra ji, please come on stage. Friends, we welcome you all on behalf of the International Council for World Affairs on this auspicious day when we have gathered to celebrate the 51st PG Day, which happens on 10th of October every year. We are blessed to have you with us and in this August gathering of guests today. As we are all aware that Corona has had devastating global effects, so in sync with the policies and directions of the Government of India, may I hereby request you to please observe COVID appropriate behavior. Please try to sit a little bit apart and keep your mask on as and when possible and comfortable. We shall start with the customary singing of the national anthem for both the countries. We request you all to maintain silence and posture appropriate for the national anthems, and please hum along as you may go. भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
Ji, to transport us to Fiji today with this lovely national anthem as well as the artifacts and decor today. So we welcome you all once again. As is customary in India, we would like to felicitate His Excellency Mr. Kamlesh Prakash Ji, the High Commissioner of the Republic of Fiji in India. Can we have a bouquet? Dr. Praveen Gupta. I also request His Excellency to please present a bouquet to Ramchand Jangra Ji. Of course, we like to felicitate all and every member of distinguished guests who have gathered today from the diplomatic side and the political side. We would also at this stage request His Excellency to please say a few words on the occasion, Your Excellency. Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Manoj Tiwari, I think he's just around the corner, Member of Parliament, Excellency Ambassadors and High Commissioners, Honorary Consuls, Mrs. Paramita Tripathi, Joint Secretary, Shania Division, Ministry of External Affairs, Dr. Ashish Gupta, Secretary General, International Council for World Affairs, Dr. Ashish Gupta, Secretary General, International Council for World Affairs, invited guests, friends, ladies and gentlemen. Bula, Namaste, and a very warm greetings to you all. It is indeed my pleasure to welcome and thank each and every one of you for having taken your time out of your busy schedules to be here with us to celebrate our 51st anniversary of independence. I must in particular thank Shri Ramchand Jangra Ji to have also taken his time off his busy schedules to be here with us this afternoon. Fiji, as you know, gained independence on 10th October 1970, as mentioned. Fiji was colonized in 1874, but our links with India began in 1879 when the first shipload of Indian indentured laborers were taken across to work on the colonial sugar plantations. From 1879 to 1916, over 61,000 Indians were taken across, and they worked in very much slave-like conditions under the indenture system, which was formally abolished in 1920. Many Indians returned to India, while some, quite a number, chose to stay back and made Fiji their new home. Today marks also the 142 years of presence of the descendants of the Indian laborers, or Girmitias as they are often called, who have made enormous contributions to the development of the country, working in very harsh and often inhumane conditions. I'm proud to inform you that based on the toil and values taught by the ancestors, the descendants of the Girmitias have remained dedicated and excel in many fields, from agriculture to business, from sports to education, and from government service to politics, amongst others. Ladies and gentlemen, as you can see, Fiji and India have enjoyed strong cultural and historical ties. Fiji is among the few countries in the world where Hindi is widely spoken and recognized as an official language.
Our constitution is written in 3 languages, and Hindi is one of those. Our people carry on with the very rich cultures, traditions, practices that their forefathers brought with them. Fijians today frequent India for tours, medical tourism, Tirath Yatra, in addition to visiting their friends and families, and for business and education. Today, Fiji has come a long way and is a vibrant democracy, stronger than that, a regional hub with strong shipping and air connectivity, modern ICT infrastructure, diverse and educated workforce, with people and business enjoying great progress and prosperity and a quality lifestyle. About 38% of the population is of Indian descent, and all citizens of Fiji are today recognized and known as Fijians under the new constitution, which gives them all common and equal citizenry. Our bilateral relations with India remain strong. In fact, these have strengthened by the day after the visit of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to Fiji in 2014. The visit to Fiji by Prime Minister Modi was groundbreaking for the Pacific, as it saw the beginning of new relationships and the hosting of the first Forum for India-Pacific Island Countries, FIPIC, with the participation by 14 leaders of the Pacific Island countries. Ever since, high-level visits between Fiji and India became frequent, which saw our current and past prime ministers, president, various ministers and other members of parliament make regular official visits to India. And there have been many notable visits to Fiji as well from India. Needless to say, in this pandemic, all travel plans were essentially torpedoed. Apart from the robust cultural and political relations between our two countries, cooperation exists across various areas such as trade, investment, agriculture, education, healthcare, defense, communication, sugar, sports, SMEs, aviation, broadcasting, climate change and renewable energy, amongst others. Several MOUs have been signed in these areas, and new ones on sustainable coastal and ocean research and in the areas of space science and technology education, etc., are being progressed. Our cooperation at international forums have been strong, and Fiji has supported India's candidates at various international fora and vice versa. At international platforms, we share many common interests and agenda. Ladies and gentlemen, as you know, the pandemic wreaked havoc in our country. We closed our border on 19th March 2020 as a drastic measure to contain the spread of the coronavirus, which in no time escalated to over 51,500 cases in a population of just over 900,000 persons. This cost us dearly. Overnight, we lost at least 40% of our GDP, and 115,000 over Fijians became unemployed with unimagined consequences. At the height of the pandemic, people remained rather helpless, but they were connected to India, watching Bollywood movies and TV serials, doing yoga indoors, and drinking now the world-famous kahada to build immunity, until we received 1 lakh doses of Covishield vaccines from India under your Vaccines Maitri initiative.
On the strength of this, and with the assistance of other friendly countries, today 97% of our adults over the age of 18 have received at least one dose, and about 79% of the age-eligible persons have been fully vaccinated. We are most grateful for this friendship and assistance, for without this, it would have taken us much longer to recover and reopen our borders, which we are planning to do so by December, early December this year. Similarly, I wish to thank the Government of India and the people of this lovely country for providing timely humanitarian and disaster relief assistance and agricultural seeds to affected communities in their hour of greatest need following the destructive cyclones early last year. We commend you for the global leadership and advocacy in climate change related challenges that the world faces today. And the Pacific together is ever so grateful to you for this. Finally, let me thank our chief guest, Shri रामचंद्र झांगड़ा जी और मेरे बड़े भाई श्री मनोज तिवारी जी for blessing us with your esteemed presence. Dhanyavad and Vinaka Vakalevu to the International Council for World Affairs and the Antarashtriya Hindi Samiti for co-hosting the celebrations with us. आपके सहायता के बगैर शायद ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं होता। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सारे फिजी के लोगों की तरफ से जो यहाँ पर मौजूद भी है। आपको नवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you very much and a happy Fiji Day to you all. And the Antarashtriya Hindi Samiti for co-hosting the celebrations with us. आपके सहायता के बगैर शायद ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं होता। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सारे फिजी के लोगों की तरफ से जो यहाँ पर मौजूद भी है। आपको नवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you very much and a happy Fiji Day to you all. Nice. So today we are blessed also with the kind presence of Manoj Tiwari ji, Honorable Member of Parliament, diplomats, Honorable Members of Parliament, members of International Council for World Affairs, and friends. ICWA appreciates your kind presence today. Ladies and gentlemen, ICWA is an NGO which is running since 2015. ICWA is engaged in promoting political, cultural, educational and religious relations between India and other countries. The organization is working with foreign missions of various countries in India, that is embassies, high commissions, consulate offices, etc. and also with intergovernmental organizations, that is United Nations, UNESCO, etc. to fulfill its endeavor for close bilateral relations between India and other nations. The organization has had a number of seminars, conferences, roundtable discussions, etc. in past, with the participation of delegates, foreign representatives and leaders of various countries, and it honored several distinguished personalities for other outstanding work or noted contributions or achievements in various fields during functions, events held in India and abroad. Of course, His Excellency has said a lot about India-Fiji relations, but it's also important and pertinent to mention that all this has happened by delegations at highest levels being exchanged between two countries. Pravasi Bharatiya Divas and Pravasi Bharatiya Samman, which have been given to various Indian diaspora there, has aided to this contribution. Various grant-aid projects, project assistance and relief assistance have been supported by the Government of India
But of course, Your Excellency, it's pertinent to mention that Fiji had also given $30,000 to India in October 2005 following an earthquake in Kashmir, which is commendable. A line of credit has been extended by Government of India for the upgradation of sugar mills in Fiji. Scholarships and cooperation in the education sector are notable. And we share many commercial and economic cooperation agreements, many cultural and language development programs are also being supported. Ladies and gentlemen, this evening would not have been possible but for the active support of His Excellency Kamlesh Shashi Prakash, who is a man of more actions and few words. His Excellency Mr. Kamlesh Prakash has been posted as the High Commissioner of the Republic of Fiji to India in February 2021. He is also accredited to the Nationalist Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Federal Democratic Republic of Nepal. His Excellency Kamlesh Prakash has over 35 years of work experience, having worked as a tutor in economics, lecturer, industrial relations officer, trainer, senior training officer, training manager, manager in organizations like the University of the South Pacific, Fiji Trades Union Congress, Fiji National Trading Council, and rising to become a program officer at the Asian Productivity Organization in Tokyo, and later director of the National Training and Productivity Center of the Fiji National University. We are very happy and pleased to have you with us today. We would now like to move forward with the cake cutting ceremony for this 51st Fiji Day. Janga Sahab, to please say a few words. Baji, kuch shabd भारत फिजी रिलेशन और हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में. बाजी को स्पेशल मैंडेट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में. बहुत ही आदरणीय श्री कमलेश प्रकाश जी, हाई कमिश्नर रिपब्लिक ऑफ फिजी, मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से दिल्ली से ही आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, उपस्थित विदेश मंत्रालय से श्री राजदूत और अन्य सभी डिग्निटरीज, जितने भी महानुभाव हैं, बहनों और भाइयों, फिजी और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं. आज फिजी का 51वां जो दिवस मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस, मुझे बहुत ही खुशी हुई है. मैं पहली बार एक ऐसे आयोजन में आया हूँ, क्योंकि जैसा अभी कमलेश प्रकाश जी बता रहे थे आप सबको, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत के समय में गिरमिटिया मजदूरों के तौर के ऊपर 61,000 मजदूर वहाँ पर ले जाए गए. एक गुलामी की अवस्था में उनको बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम लिया गया. लेकिन मुझे खुशी है ये कहते हुए कि भारत के व्यक्ति की ये सुंदरता है, ये महानता है कि उन्होंने हमेशा खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाया है. हम आज जिस जगह के ऊपर खड़े हैं, ये कभी कभी खांडव वन है. कौरवों और पांडवों की आपस में लड़ाई थी, हस्तिनापुर साम्राज्य था, तो पांडवों को एक उबड़ खाबड़ जंगली क्षेत्र दिया गया था और श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि इसी को आपने कर्म क्षेत्र बनाना है. और उन्होंने इस धरती को खांडव वन से इंद्रप्रस्थ बनाया, जो आज देश की राजधानी है. भारतीय जहाँ पे भी गए, उस धरती को अपना मान के वहाँ के विकास के लिए उन्होंने दिनों रात मेहनत की. खुद भी ऊंचाइयों तक गए, यहाँ तक के जो बंधुआ मजदूर गए थे, उस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुँचे. तो फिजी और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं. हम फिजी को भी लघु भारत कह सकते हैं. जैसा अभी हाई कमिश्नर जी बता रहे थे
कि फिजी में 3 भाषाएं जो है उनको मान्यता दी गई है, जिनमें हिंदी भी एक है। मैं क्योंकि संसद में जो राजभाषा समिति है उसकी पहली समिति का मैं संयोजक हूँ, विदेश मंत्रालय भी हमारे पास है, जिसके हम समय समय पर निरीक्षण भी करते रहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में हिंदी का कितना प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी आज विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसकी लिपि का नाम ही देवनागरी है, देवताओं के मुख से निकली हुई। वो मैं इसलिए कहता हूँ ये बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसके 12 स्वर हैं, 37 व्यंजन है। अब जितने स्वर हैं वो यहाँ से बोलते हैं, ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग, ये सारे के स्वर हम गले से यहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। फिर हम व्यंजनों पर आते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, गे खे गे घेड़, फिर थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, चे छे जय जय ये, फिर उससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, टे ठे डे ढे, फिर उसे बिल्कुल दांतों के पीछे जीभ आ जाती है, ते थे दे धे ने, फिर बिल्कुल जब तालू का, दांतों का और जीवा का प्रयोग समाप्त हो जाता है तो आगे के जो शब्द हैं वो होठों पर आ जाते हैं, पै 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 मैं। इतना साइंटिफिक किसी भाषा का कोई उच्चारण नहीं। और जो शब्द हमारे रह गए, ये रे ले वे से है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर के चक्रों के साथ जोड़े। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्रार दल कमल, इनके साथ इन अक्षरों का योग किया गया है। आप देखते हैं ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। जो बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं वो भगवान के घर से सीधा आता है, तो उसको एक दूसरे में फर्क नहीं होता है। तो जब वो भाषा सीखता है तो आप अनुभव करते हैं कि कोई बच्चा रे को ले बोलता है, उसको कहेंगे ये चीज मेरी है तो कहेंगे मेरी है। कोई बच्चा रे को ये बोलता है, तो ये जो आखिरी के जो शब्द हैं ये सारे के सारे परमात्मा के चक्रों के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे शोधकर्ताओं ने लिपि का आविष्कार करते वक्त, लिपि का निर्माण करते वक्त कितना शोध किया होगा, कितना चिंतन किया होगा, कितना मंथन किया होगा। एक ही भाषा दुनिया में ऐसी है जो लिखी जाती है वही बोली जाती है। अंग्रेजी में नाइफ बोलेंगे तो लिखेंगे कनाइफ, लेकिन यहाँ चे को चे ही बोलेंगे, वहाँ CH को कै भी बोल सकते हैं, चे भी बोल सकते हैं। हिंदी अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध भाषा है, जो सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मैं पहली राजभाषा समिति का संयोजक होने के नाते मेरा समय समय के ऊपर मिलना होता है, और विदेश मंत्रालय भी हमारी राजभाषा समिति के दायरे में आता है, निरीक्षण के लिए हम जाते हैं। तो मैं उस विषय को ना लेकर आज मैं यही कहूँगा कि फिजी के 51वें दिवस के ऊपर, 51वें फिजी दिवस के ऊपर हम सब जहाँ पर जो भी इकट्ठे हैं, हमारी सांस्कृतिक एकता भी है, भाषाई एकता भी है, और सबसे ज़्यादा हमारे हित जो है, क्योंकि कॉलोनियल काल से ब्रिटिश भारत के समय से ही फिजी और भारत एक हो गए। तो हालांकि स्वतंत्रता चाहे बाद में फिजी को मिली, लेकिन वो भी एक लघु भारत को स्वतंत्रता मिली, मैं ये मानता हूँ। जैसे गोवा बाद में आज़ाद हुआ, पुर्तगाल के अधीन थे गोवा बहुत लंबे समय तक, तो इसी तरह हम फिजी को भी अपना ही देश मानते हैं, अपना ही सब कुछ वहाँ पर, अपनी संस्कृति को, अपनी वहाँ की जनसंख्या को, वहाँ के जनमानस को, जितना अपलत्व फिजी का और भारतवासियों का है, इतना शायद किसी देश का आपस में। तो मैं फिजी दिवस के ऊपर यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे महानुभावों, भाइयों और बहनों को फिजी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि फिजी के सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध इसी तरह से एक दूसरे के साथ गहराई से
जो अंतरात्मा के संबंध हैं वो संबंध बढ़ के रहें, हम एक दूसरे से पर्यायवाची। आप सभी, मुझे पता है यहाँ जो भी उपस्थित है बहुत खास है, और ये दिन भी खास है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला। फिजी हमारा मित्र देश है, हमारा पारिवारिक देश है। जैसा आपने बताया आदरणीय रामचंद्र जी ने कि वो एक प्रकार से जब आप वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो आपको लगता है कि बस भारत का ही एक हिस्सा बहुत दूर, बहुत अपने ढंग से पुष्पित पल्लवित हो रहा है। मैं अलग से भी कमलेश प्रकाश जी से संपर्क में रहता हूँ। मैं पीछे ही कुछ दिन पहले गया था तो आपके एक सबॉर्डिनेट हैं नीलेश जी, वो मुझे गीत गाते हुए मिले। उन्होंने कहा मैं गीत सुनाऊंगा, तो मैं सोचा कि वे सुनते हैं आज फिजी का गीत कैसा होता है। तो गीत गाए, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। अब मैं उनको देखते रहा, उनके बच्चों ने, वहाँ के कुछ बच्चे थे, उन्होंने हमें जनगण मन गा के सुनाया, छोटे छोटे बच्चे। तो अब आप महसूस कर सकते हैं कि जो फिजी न गया हो उसकी कैसी फीलिंग होगी। और ऐसे हमारे बहुत सारे देश हैं जो भारत से ऐसे ही जुड़े हुए हैं। मुझे अभी जाने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन हम जल्दी हम तो सोचे थे कि शायद 51वें फिजी दिवस पे हमें ही फिजी जाने का मौका मिलेगा। कोविड ने अभी हम लोगों को अनुमति नहीं दी है, लेकिन हम जरूर अपेक्षा करेंगे कि जब 52वां फिजी दिवस हो तो हम सब किसी न किसी बहाने फिजी में जाएं और वहाँ के लोगों से बातचीत करें। ऐसा हमारे मन की कामना रहेगी। आप सभी को आज उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से फिजी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिजी जितना प्रगति करेगा भारत की खुशी उतनी ही ज़्यादा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज तिवारी जी, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स योर आपका जो बोलने का अंदाज है वो तो सभी को सर जागिर है। थैंक यू सो मच। मे आई नाउ रिक्वेस्ट कुंवर दानिश अली जी टू प्लीज कम फॉरवर्ड, एंड Bauji Ramchandra Changra ji, please felicitate Kuwar Danish Ali, is also a member of parliament. Danish Ali साहब, please. Bauji, scarf. और मैं एम्बेसडर साहब से, हाई कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा to please felicitate Manoj Tiwari ji on this occasion. It is important to mention today that this function has been kindly, consented or supported by FCC, the Foreign Correspondent Club here, and the President of FCC, Mulesh Gupta, is also here with us. So we thank you, sir, for your kind support. And because he is an expert and a very old hand in journalism, being a founder and supporter of many journalistic organizations, would you like to come forward and say a few words by your experience, sir? Very good, Danish. And good evening, other excellencies. And yes, it is a pleasure to welcome all of you to the Foreign Correspondents Club of South Asia. I am a very proud member of the Indian diaspora myself, so it gives me great pleasure to particularly be here today. And I hope you enjoyed this evening. I think the relationship between India and Fiji and other diaspora Girmitia countries stands out. It's very important, and we hope you have now enjoyed and seen the Foreign Correspondents Club. Please keep coming back. And thank you, Ashish. The excellencies are coming. Photo. Sir, okay.
Your Excellency, please stay for a photo. The cake will be served. Please, go inside. सभी का 51वें फिजी दिवस पर बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हिज एक्सलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ फिजी मिस्टर कमलेश प्रकाश जी, आदरणीय सांसद साहब जो है रामचंद्र झांगड़ा जी, आदरणीय सांसद जो है मनोज तिवारी जी, आदरणीय सांसद कुंवर दानिश अली जी, आप सभी का अभिनंदन है। और यहाँ पर मौजूद सभी राजदूत और जो हमारे संगठनों से जुड़े हुए सदस्यों का अभिनंदन है। ये जो है मैं क्योंकि हम यहाँ पर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से कुछ सम्मान जो है कर रहे हैं, तो मैं आपको जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का संक्षिप्त परिचय बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की स्थापना 2005 में प्रख्यात हिंदी सेवी, लखनऊ के पूर्व महापौर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर दाऊजी गुप्त, सेंट जॉन्स कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शिववान शर्मा जी और डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, मैंने जो है देश विदेश में हिंदी प्रेमियों को एकजुट करने के लिए की संस्था हिंदी के प्रचार प्रसार उन्नयन के लिए जो है कार्यरत है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 8वें, 9वें, 10वें, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलनों में हमने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। संस्था प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस पर पूर्व जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करती है। और संस्था द्वारा आयोजित हिंदी सेवा सम्मान में विभिन्न देशों के राजदूत, हिंदी प्रेमी, कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार सम्मिलित होते हैं। संस्था ने हिंदी सम्मान कार्यक्रम में हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्यरत मॉरिशस के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री उसके बाद फिजी और किर्गिस्तान के राजदूत, रूस के राजदूत और अन्य को जो है सम्मानित किया है। संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। एक बात मैं आपको विशेषता बताना चाहूँगा कि पहले एक शब्द एक होता था कि भाई हिंदी दो दवाएं, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दवाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की तरफ से ये कदम उठाया गया और हम जो है हमने भारत सरकार को पत्र लिखे और आज जो है जब आप टेलीफोन करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि हिंदी की जानकारी के लिए 1 दवा। जल्दी ये जानकारियां जो है खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्रियों पर भी आने वाली हैं, दवाइयों पर भी आने वाली हैं। संस्था हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संस्था चिकित्सा, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद व प्रकाशन में सहायता करती है ताकि हिंदी रोजगार की भाषा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम जो है सम्मानित कर रहा हूँ फिजी के महामहिम उच्चायुक्त श्री कमलेश प्रकाश जी को। संस्था श्री कमलेश प्रकाश जी को हिंदी साहित्य सेवा के लिए साहित्य भूषण प्रदान करती है। श्री कमलेश प्रकाश भारत में उच्चायुक्त नियुक्त होने से पूर्व कई राष्ट्रों में राजदूत रह चुके हैं। श्री कमलेश प्रकाश ने स्नातकोत्तर शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। श्री कमलेश प्रकाश को 35 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। श्री कमलेश प्रकाश हिंदी में वार्ता करते हुए बहुत हर्षित जो नजर आते हैं। सर, हम आपको हिज एक्सेलेंसी हम आपको साहित्य भूषण प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं।
सम्मान की श्रेणी में अगला नाम है डॉक्टर शिव भगवान शर्मा जी का। डॉक्टर शिव भगवान शर्मा जी हिंदी संस्कृत भाषा विज्ञान में PhD डीलिट हैं। डॉक्टर शिव भगवान प्रख्यात सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में हिंदी विभाग के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर शिव भगवान शर्मा के निर्देशन में 120 से अधिक बच्चों ने PhD जो है अपनी पूर्ण की है। डॉक्टर शिव भगवान शर्मा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा आयोजित हिंदी सम्मेलनों में अमेरिका, कनाडा, नेपाल में आयोजित सभी सम्मेलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सर, हम आपको साहित्य भूषण प्रदान करते हुए अति गौरवान्वित हैं। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी कॉर्पोरेट जगत में होने के बावजूद हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत हैं। डॉक्टर विनोद वर्मा प्रख्यात शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर वर्मा कई गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, भूटान आदि देशों में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए बैठकें आयोजित की हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी को साहित्य भूषण प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करती है। डॉक्टर सोम ठाकुर जी। डॉक्टर सोम ठाकुर जी प्रख्यात कवि, लेखक और शिक्षाविद हैं। डॉक्टर सोम ठाकुर आगरा के कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रवक्ता रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सोम ठाकुर ने अमेरिका के 29 व कनाडा के 10 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की शाखाओं की स्थापना की, कविता पाठ किया, हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया। डॉक्टर ठाकुर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष रहे। डॉक्टर सोम ठाकुर को भारत सरकार, राज्य सरकार और अमेरिका के कई शहरों के महापौर विभिन्न सम्मान पत्रों से सम्मानित कर चुके हैं। डॉक्टर सोम ठाकुर की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति डॉक्टर सोम ठाकुर को साहित्य भूषण प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करती है। डॉक्टर जयप्रकाश गोयल जी। डॉक्टर जयप्रकाश गोयल जी कई सामाजिक संगठनों से के सहयोग से हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्यरत हैं। डॉक्टर जयप्रकाश गोयल जी ने हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों का दौरा किया है। डॉक्टर जयप्रकाश गोयल जी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के तहत एक मुहिम चलाई कि सभी दवाइयों, खाद्य सामग्री पर भी जो है हिंदी में विवरण अंकित किए जाएं। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी प्रख्यात कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार और पत्रकार हैं। डॉक्टर रंजन ने पत्रकारिता योग में स्नातकोत्तर शिक्षा व PhD की है। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी की 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर रंजन 44 वर्षों में 5000 से अधिक कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक गीत सुना रहा हूँ, एक गीत फिजी राष्ट्र के नाम, आप लोगों की सेवा में सुनिएगा। ये देश है हमारा, फिजी है नाम प्यारा। ये देश है हमारा, फिजी है नाम प्यारा। अरे जन जन का है दुलारा, फिजी है नाम प्यारा। ये देश है हमारा, फिजी है नाम प्यारा। तो है हरित बाग प्यारे, संसार से है न्यारे। हमको पुकारते हैं संसार के सितारे। है सबका ये दुलारा, फिजी
फीजी है नाम प्यारा, ये देश है हमारा, फीजी है नाम प्यारा। और अगली पंक्तियां हैं, ये सुंदर है सब सुभग है, हर बात में अलग है, हर बात में अलग है, संस्कृति को मानते हैं, दिन रात में सुलभ है प्रेम से पुकारा, फीजी है नाम प्यारा, ये देश है हमारा, फीजी है नाम प्यारा। और अगली पंक्तियां सुनाता हूँ, ये आकाश झूमता है, धरती को चूमता है, इसका प्रकाश वैभव दुनिया में घूमता है, तो जन जन ने है सवारा, फीजी है नाम प्यारा, ये देश है हमारा, फीजी है नाम प्यारा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिएगा साहब, हिंदी है इसकी भाषा, है विश्व को दिलासा, हिंदी है इसकी भाषा, है विश्व को दिलासा, अवधि है इसको प्यारी, तुलसी की है पिपासा, आँखों की सबका तारा, फीजी है नाम प्यारा, ये देश है हमारा, फीजी है नाम प्यारा। और अंतिम पंक्तियां हैं कि झरने नदी नहर है, हर बात में प्रखर है, अट्टालिकाएं ऊंची, परिवार घर नगर है, तो बहती है भावधारा, बहती है भावधारा, फीजी है नाम प्यारा, ये देश है हमारा, फीजी है नाम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अगला और अंतिम सम्मान डॉक्टर श्री रामचंद्र झांगड़ा जी के लिए। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी हरियाणा से हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी राज्यसभा से सांसद हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी हरियाणा सरकार के मंत्री रह चुके हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी भारत सरकार की संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उपसमिति के संयोजक हैं। महिला एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार को हिंदी समिति के सदस्य हैं। भारत सरकार के शहरी विकास विभाग की समिति के सदस्य हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के साथ व हिंदी डिप्लोमेट्स के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति डॉक्टर झांगड़ा को साहित्य भूषण प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। Dr. Vinod Kumar Verma ji want to present something to His Excellency High Commissioner Mr. Sachin Gupta. आप सभी को नवरात्र और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर आशीष गुप्ता जी प्लीज। Now request Her Excellency Madam Padamja, who's been ex-ambassador of India to Fiji, please come forward, Madam Padamja, to please come forward and recite a poem. She is a multi-talented ex-ambassador, ex-high commissioner. Thank you so much, ma'am. Please come forward. परम आदरणीय रामचंद्र जहांगीर जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय हाई कमिश्नर कमलेश जी, मंच पर मंचस्थ अन्य सम्मानित अतिथि, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आज 8 अक्टूबर के अवसर पर फीजी डे के लिए, फीजी दिवस के लिए आप सभी को, फीजी को, फीजी वासियों को, फीजी हाई कमीशन के लोगों को और सभी फीजी के मित्रों को, प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे इस बात का मौका मिला, फीजी में सर्व करने का मौका मिला 1.5 साल के लिए, लेकिन वो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय है जो शायद आजीवन उसी तरह ताज़ा रहेगा मेरे दिमाग में।
उसके बारे में अगर बताने बैठूं तो पूरी किताब लिख जाए। तो इसलिए मैं इस बात का लोभ स्मरण कर रही हूँ, अपने आप को रोक रही हूँ फिजी के बारे में ज़्यादा चर्चा करने से। पर मुझे आदेश मिला है हाई कमिश्नर जी की तरफ से कि मैं एक कविता उनको सुनाऊं, और उस कविता के बारे में उनको फिजी से पता चला। जिन दिनों मैं फिजी में कार्यरत थी तो मेरे पिताजी 6 महीने के लिए वहाँ पर आए थे। उनको फिजी इतना सुंदर लगा कि एक दिन वो अपने मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाए बाहर, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो वो उस बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, तो बैठे बैठे उन्होंने एक कविता लिख डाली, और वो कविता इतनी लोकप्रिय हुई फिजी में कि मुझे पता चला। मैं पिछले साल 8 तारीख को ही वापस आई थी, 1 साल हो गया फिजी से आकर के। तो मुझे पता चला कि वहाँ के नेशनल डे पर वो कविता बहुत जगह सुनाई गई। तो वही कविता लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। और मुझे मेरा गला तकलीफ़ दे रहा है, इस समय सोर थ्रोट चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका कमलेश जी का आदेश है, इसलिए ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने इसको थोड़ा संक्षेप कर दिया है, कुछ स्टैंजास कम कर दिए हैं ताकि समय की पाबंदी रहे। तो प्रस्तुत है, इसका शीर्षक है, मेरे पिताजी का नाम है श्री राजकुमार अवस्थी। वो एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और इस समय कानपुर में रह रहे हैं। ये उनका संक्षिप्त परिचय है। उनको भाषाओं से बहुत प्रेम है, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, ये सारी भाषाएं वो जानते हैं और बोलते भी हैं। तो उनकी कविता का शीर्षक है एक भारतीय पर्यटक की दृष्टि में फिजी। सर अनुमति चाहिए। मैं इसे कविता की तरह थोड़ा सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे संगीत की अच्छी जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। और अगर खांसी भी आ जाए तो भी आपके शब्द से क्षमा मांग रहे हैं आप लोगों से। प्रकृति सुंदरी का अंतःपुर फिजी नंदन वन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है। सागर की उत्ताल तरंगे, फिजी जो है वो पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर हमेशा ही चारों तरफ जब भी आप निगाह उठाते हैं तो समुद्र ही दिखाई देता है चारों तरफ। तो उनको समुद्र देख करके अपनी गंगा यमुना, वहाँ की रेवा और बा नदियाँ, वो सब देखकर उन्हें गंगा यमुना याद आती। सागर की उत्ताल तरंगे याद दिलाती हर हर गंगे, देख देख सावरी घटाएं, देख देख सावरी घटाएं, हर मौसम सावन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है। सावन इसलिए लगता है कि वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। सुवा इसीलिए सुवा पंखी कलर का है क्योंकि वो बहुत ग्रीन है। हम सुवा नाम को उसी से जोड़ते थे हमेशा। वहाँ हरितिमा इतनी ज़्यादा है, पुष्पित और पल्लवित लताएं झूम झूम कर नाचे गाए, घाटी के आंचल में फैला, घाटी के आंचल में फैला उपवन वृंदावन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है। रेवा और बा वहाँ की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। रेवा बा की जलधाराएं गंगा जमुना सी लहराएं, तन मन की यह प्यास बुझाए, तन मन की यह प्यास बुझाए, इनका तट पावन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है। और फिजी के लोगों का हैप्पीनेस कोशेंट इस पूरे प्लेनेट में सबसे ज़्यादा है, तो उसका जिक्र आता है इसमें।
फीजी के प्रसन्न नर नारी, बुला मुस्कुराहट है प्यारी। उनकी स्माइल को बुला कहा जाता है और ये पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे विश्व में लोग इसके बारे में जानते हैं। फीजी के प्रसन्न नर नारी, बुला मुस्कुराहट है प्यारी। इनकी खुशी की खुशबू से यह, इनकी खुशी की खुशबू से यह सुरभित चंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। वहाँ सुवा में एक बहुत सुंदर पार्क है, उसका नाम है माई सुवा पार्क। बहुत से लोग वहाँ टहलने के लिए आते हैं। तो मैंने पिताजी से आग्रह किया कि फीजी की लड़कियों के बारे में भी कुछ लिखें, तो उन्होंने लड़कियों और लड़कों के बारे में एक स्टैंजा लिखा है। चलती फिरती दीप शिखाएं, फीजी की सुंदर बालाएं, इनके पद संचालन से ही, इनके पद संचालन से ही सुवा पार्क मधुवन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। और फीजी अपने रग्बी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ओलंपिक में भी अभी फीजी चैंपियन रहा, उसका जिक्र भी इसमें आता है। स्वस्थ सजीले तरुण गठीले, खिले पुष्प से पीले नीले, भागे दौड़े रग्बी खेले, भागे दौड़े रग्बी खेले, यौवन का मेला लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे, गूंज रहे सबके जयकारे, होली ईद दिवाली क्रिसमस। वहाँ पर सभी त्यौहार बहुत लंबे समय तक मनाए जाते हैं। दिवाली 1 महीने तक चलती है, होली 20 दिन तक चलती है, रक्षाबंधन 10 दिन चलता है। तो सारे त्यौहार वहाँ भारत से भी ज़्यादा बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। तो उनकी चर्चा है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे, गूंज रहे सबके जयकारे, होली ईद दिवाली क्रिसमस, हर दिन यहाँ पर्व लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। नगर रम्य नांदी लोटो का, ये वहाँ के शहरों के बारे में है। नगर रम्य नांदी लोटो का, लंबा सा माथे का टीका, सुवा शहर अपने वैभव में, सुवा शहर अपने वैभव में, हीरक कंठहार लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। और अब एक अंतिम स्टैंजा है जिसके बारे में आप कुछ लोग जानते भी होंगे। बहुत अद्भुत कुछ चीज़ें हैं वहाँ जो वर्ल्ड वंडर्स में आती हैं। वहाँ पर भी भारत में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है कैलाश हिल, और उसमें एक ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ है। वो अकेला ज्योतिर्लिंग नहीं है। आश्चर्य की बात है कि 5 ज्योतिर्लिंग निकले हैं वहाँ। एक बहुत विशाल आकार का है, लगभग इतना ऊंचा है, और वो बराबर ग्रो कर रहे हैं सभी ज्योतिर्लिंग। ये बहुत अद्भुत बात है। और इसके अलावा वहाँ पर एक नागराज का मंदिर है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया मर्दन किया तो उनको आदेश दिया, उनकी पत्नी के अनुरोध पर उन्होंने उनका प्राण नहीं लिया और कहा कि तुम ये छोड़कर, यमुना छोड़कर चले जाओ, रमणीक द्वीप में वास करो। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो रमणीक द्वीप है, इतना सुंदर है फीजी। और वहाँ पर वो जो नागराज मंदिर है, उसकी कथा ये है, कथा नहीं मतलब वो एक भौगोलिक सत्य है
कि वहाँ पर एक प्रस्तरखंड इस तरह से प्रस्फुटित हो रहा है कि वो नाग की शेप में है और उस मंदिर की छत को कई बार ऊंचा कराना पड़ा। मुझे भी उस वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य कई बार मिला। और इसके अतिरिक्त लास्ट चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड है। कमलेश जी, आप उसका खूब प्रचार करिएगा, लोग बहुत जाएंगे। तो फ्लोटिंग आइलैंड अद्भुत है। एक झील है और उस झील में एक भूखंड है जो शायद इस प्लॉट से 4 गुना होगा और वो बराबर उस झील में तैरता रहता है। और उस प्लॉट में इतने पेड़ पौधे हैं, लदा हुआ है, नारियल के पेड़ हैं, तमाम तरह के फूलों के फलों के वृक्ष हैं उसमें, और वो भूखंड धीरे धीरे उस झील में तैरता रहता है। तो इन तीनों चीज़ों का जिक्र इस अंतिम स्ट्रैंजा में है। शिव शंभु कैलाश विराजे, नागराज धरती पर साजे, अतल कुंड भूखंड तैरता, यह रमणीक द्वीप लगता है, यह रमणीक द्वीप लगता है, फिजी नंदन वन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है। Fiji is like Eden Garden. It is our Eden Garden. Thank you so much. और आपको विशेष धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। Thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you so much. Very creative and a lovely voice. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, yes. But you have added wonderful voice. So Her Excellency says that it's written by her father, but she has added her wonderful voice and made it more lively. May I now request everybody to please enjoy tea and coffee while our friend here, Shri Pankaj Jeswani ji, who is a noted singer, who has been awarded twice by the President of India. His first album was released by Prime Minister of India, to please entertain us with some music. Pankaj Jeswani ji, thank you so much. And while we will be pleased to listen to his nice voice. Everybody may please conclude and have some photo session and a group photo here with the Excellencies and the people on the stage. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं है विश्व को दिलासा, अवधि है इसको प्यारी, तुलसी की है पिपासा, आँखों की सबका तारा, फिजी है नाम प्यारा, ये देश है हमारा, फिजी है नाम प्यारा। और अंतिम पंक्तियां हैं कि झरने नदी नहर है, हर बात में प्रखर है, अट्टालिकाएं ऊंची, परिवार घर नगर है। तो बहती है भावधारा, बहती है भावधारा, फिजी है नाम प्यारा, ये देश है हमारा, फिजी है नाम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अगला और अंतिम सम्मान डॉक्टर श्री रामचंद्र झांगड़ा जी के लिए। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी हरियाणा से हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी राज्यसभा से सांसद हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी हरियाणा सरकार के मंत्री रह चुके हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा जी भारत सरकार की संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उपसमिति के संयोजक हैं। महिला एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार को हिंदी समिति के सदस्य हैं। भारत सरकार के शहरी विकास विभाग की समिति के सदस्य हैं। श्री रामचंद्र झांगड़ा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के साथ व हिंदी डिप्लोमेट्स के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति डॉक्टर झांगड़ा को साहित्य भूषण प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। Dr. Vinod Kumar Verma ji want to present something to His Excellency High Commissioner Mr. Sachin Gupta. आप सभी को नवरात्र और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर आशीष गुप्ता जी प्लीज। Now request Her Excellency Madam Padamja, who's been ex-ambassador of India to Fiji,
please come forward, Madam Padamja, to please come forward and recite a poem. She is a multi-talented ex-ambassador, ex-high commissioner. Thank you so much, ma'am. Please come forward. परम आदरणीय रामचंद्र जागीर जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय हाई कमिश्नर कमलेश जी, मंच पर मंचस्थ अन्य सम्मानित अतिथि, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आज 8 अक्टूबर के अवसर पर फिजी डे के लिए, फिजी दिवस के लिए आप सभी को, फिजी वासियों को, फिजी हाई कमीशन के लोगों को और सभी फिजी के मित्रों को, प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे इस बात का मौका मिला, फिजी में सर्व करने का मौका मिला 1.5 साल के लिए, लेकिन वो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय है जो शायद आजीवन उसी तरह ताज़ा रहेगा मेरे दिमाग में। उसके बारे में अगर बताने बैठूं तो पूरी किताब लिख जाए, तो इसलिए मैं इस बात का लोभ स्मरण कर रही हूँ, अपने आप को रोक रही हूँ फिजी के बारे में ज़्यादा चर्चा करने से। पर मुझे आदेश मिला है हाई कमिश्नर जी की तरफ से कि मैं एक कविता उनको सुनाऊं, और उस कविता के बारे में उनको फिजी से पता चला। जिन दिनों मैं फिजी में कार्यरत थी तो मेरे पिताजी 6 महीने के लिए वहाँ पर आए थे। उनको फिजी इतना सुंदर लगा कि एक दिन वो अपने मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाए बाहर, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो वो उस बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, तो बैठे बैठे उन्होंने एक कविता लिख डाली, और वो कविता इतनी लोकप्रिय हुई फिजी में कि मुझे पता चला। मैं पिछले साल 8 तारीख को ही वापस आई थी, 1 साल हो गया फिजी से आकर के। तो मुझे पता चला कि वहाँ के नेशनल डे पर वो कविता बहुत जगह सुनाई गई। तो वही कविता लेकर मैं आज आपके सामने हूँ, और मुझे मेरा गला तकलीफ़ दे रहा है, इस समय सोर थ्रोट चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका कमलेश जी का आदेश है, इसलिए ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने इसको थोड़ा संक्षेप कर दिया है, कुछ स्टैंजास कम कर दिए हैं ताकि समय की पाबंदी रहे। तो प्रस्तुत है, इसका शीर्षक है, मेरे पिताजी का नाम है श्री राजकुमार अवस्थी। वो एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और इस समय कानपुर में रह रहे हैं। ये उनका संक्षिप्त परिचय है। उनको भाषाओं से बहुत प्रेम है, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, ये सारी भाषाएं वो जानते हैं और बोलते भी हैं। तो उनकी कविता का शीर्षक है, एक भारतीय पर्यटक की दृष्टि में फिजी। सर, अनुमति चाहिए। मैं इसे कविता की तरह थोड़ा सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे संगीत की अच्छी जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। और अगर खांसी भी आ जाए तो भी आपके शब्द से क्षमा मांग रहे हैं आप लोगों से। प्रकृति सुंदरी का अंतःपुर फिजी नंदन वन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है। सागर की उत्ताल तरंगे, फिजी जो है वो पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर हमेशा ही चारों तरफ जब भी आप निगाह उठाते हैं तो समुद्र ही दिखाई देता है चारों तरफ। तो उनको समुद्र देख करके अपनी गंगा यमुना, वहाँ की रेवा और बा नदियाँ, वो सब देखकर उन्हें गंगा यमुना याद आती है। सागर की उत्ताल तरंगे याद दिलाती हर हर गंगे, देख देख सावरी घटाएं, देख देख सावरी घटाएं, हर मौसम सावन लगता है, फिजी नंदन वन लगता है। सावन इसलिए लगता है कि वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। सुआ इसीलिए सुआ पंखी कलर का है क्योंकि वो बहुत ग्रीन है। हम सुआ नाम को उसी से जोड़ते थे हमेशा। वहाँ हरितिमा इतनी ज़्यादा है,
पुष्पित और पल्लवित लताएं झूम झूम कर नाचे गाएं। घाटी के आंचल में फैला, घाटी के आंचल में फैला उपवन वृंदावन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। रेवा और बा वहाँ की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। रेवा बा की जलधाराएं गंगा जमुना सी लहराएं, तन मन की यह प्यास बुझाए, तन मन की यह प्यास बुझाए, इनका तट पावन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। और फीजी के लोगों का हैप्पीनेस कोशेंट इस पूरे प्लेनेट में सबसे ज़्यादा है, तो उसका जिक्र आता है इसमें। फीजी के प्रसन्न नर नारी, बुला मुस्कुराहट है प्यारी। उनकी बुला, उनकी स्माइल को बुला कहा जाता है और ये पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे विश्व में लोग इसके बारे में जानते हैं। फीजी के प्रसन्न नर नारी, बुला मुस्कुराहट है प्यारी। इनकी खुशी की खुशबू से यह, इनकी खुशी की खुशबू से यह सुरभित चंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। वहाँ सुवा में एक बहुत सुंदर पार्क है, उसका नाम है माई सुवा पार्क। बहुत से लोग वहाँ टहलने के लिए आते हैं, तो मैंने पिताजी से आग्रह किया कि फीजी की लड़कियों के बारे में भी कुछ लिखें, तो उन्होंने लड़कियों और लड़कों के बारे में एक स्टैंजा लिखा है। चलती फिरती दीप शिखाएं, फीजी की सुंदर बालाएं, इनके पद संचालन से ही, इनके पद संचालन से ही सुवा पार्क मधुवन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। और फीजी अपने रग्बी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ओलंपिक में भी अभी फीजी चैंपियन रहा, उसका जिक्र भी इसमें आता है। स्वस्थ सजीले तरुण गठीले, खिले पुष्प से पीले नीले, भागे दौड़े रग्बी खेले, भागे दौड़े रग्बी खेले, यौवन का मेला लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे, गूंज रहे सबके जयकारे। होली ईद दिवाली क्रिसमस, वहाँ पर सभी त्यौहार बहुत लंबे समय तक मनाए जाते हैं। दिवाली 1 महीने तक चलती है, होली 20 दिन तक चलती है, रक्षाबंधन 10 दिन चलता है। तो सारे त्यौहार वहाँ भारत से भी ज़्यादा बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं, तो उनकी चर्चा है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे, गूंज रहे सबके जयकारे। होली ईद दिवाली क्रिसमस, हर दिन यहाँ पर्व लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। नगर रम्य नांदी लोटो का, ये वहाँ के शहरों के बारे में है। नगर रम्य नांदी लोटो का, लंबा सा माथे का टीका, सुवा शहर अपने वैभव में, सुवा शहर अपने वैभव में, हीरक
कंठहार लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। और अब एक अंतिम स्टैंजा है जिसके बारे में आप कुछ लोग जानते भी होंगे। बहुत अद्भुत कुछ चीज़ें हैं वहाँ जो वर्ल्ड वंडर्स में आती हैं। वहाँ पर भी भारत में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है कैलाश हिल, और उसमें एक ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ है। वो अकेला ज्योतिर्लिंग नहीं है। आश्चर्य की बात है कि 5 ज्योतिर्लिंग निकले हैं वहाँ। एक बहुत विशाल आकार का है, लगभग इतना ऊंचा है, और वो बराबर ग्रो कर रहे हैं सभी ज्योतिर्लिंग। ये बहुत अद्भुत बात है। और इसके अलावा वहाँ पर एक नागराज का मंदिर है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया मर्दन किया तो उनको आदेश दिया, उनकी पत्नी के अनुरोध पर उन्होंने उनका प्राण नहीं लिया और कहा कि तुम ये छोड़कर, यमुना छोड़कर चले जाओ, रमणीक द्वीप में वास करो। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो रमणीक द्वीप है, इतना सुंदर है फीजी। और वहाँ पर वो जो नागराज मंदिर है, उसकी कथा ये है, कथा नहीं मतलब वो एक भौगोलिक सत्य है कि वहाँ पर एक प्रस्तर खंड इस तरह से प्रस्फुटित हो रहा है कि वो नाग की शेप में है, और उस मंदिर की छत को कई बार ऊंचा कराना पड़ा। मुझे भी उस वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य कई बार मिला। और इसके अतिरिक्त लास्ट चीज़ ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड है। कमलेश जी, आप उसका खूब प्रचार करिएगा, लोग बहुत जाएंगे। तो फ्लोटिंग आइलैंड अद्भुत है। एक झील है और उस झील में एक भूखंड है जो शायद इस प्लॉट से 4 गुना होगा, और वो बराबर उस झील में तैरता रहता है। और उस प्लॉट में इतने पेड़ पौधे हैं, लदा हुआ है, नारियल के पेड़ हैं, तमाम तरह के फूलों के, फलों के वृक्ष हैं उसमें, और वो भूखंड धीरे धीरे उस झील में तैरता रहता है। तो इन तीनों चीज़ों का जिक्र इस अंतिम स्टैंजा में है। शिव शंभु कैलाश विराजे, नागराज धरती पर साजे, अतल कुंड भूखंड तैरता, यह रमणीक द्वीप लगता है, यह रमणीक द्वीप लगता है, फीजी नंदन वन लगता है, फीजी नंदन वन लगता है। फीजी इज लाइक ईडन गार्डन, इट इज़ आवर ईडन गार्डन। थैंक यू सो मच। और आपको विशेष धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू। Thank you, Your Excellency. Thank you so much. Very creative and a lovely voice. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, yes. But you have added wonderful voice. So, Her Excellency says that it's written by her father, but she has added her wonderful voice and made it more lively. May I now request everybody to please enjoy tea and coffee while our friend here, Shri Pankaj Jeswani ji, who is a noted singer, who has been awarded twice by the President of India. His first album was released by Prime Minister of India, to please entertain us with some music. Pankaj Jeswani ji, thank you so much. And while we will be pleased to listen to his nice voice, everybody may please conclude and have some photo session and a group photo here with the excellencies and the people on the stage. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं तमाम साथियों का भी धन्यवाद करते हैं कि हम सब का ये जो मिलन जो इन्होंने करवाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आशीष जी का, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी का, समस्त टीम का, काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का, और फिजी के तमाम मेंबरान, और मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी मंच पे हैं, खुद अच्छे कलाकार हैं। प्लीज़ इधर से कुछ क्रॉस मत करें, मैं बड़ी मेहरबानी चाहूँगा, तारे लगेंगे। कुछ गीतों के साथ जब तक आप चाय भी इंजॉय करें, हाई टी इंजॉय करें। मेरी इच्छा है कि आज पावन दिन है फिजी का, तो छोटे से भजन से शुरुआत करना चाहता हूं, उसके बाद गीत। छोटा सा भजन, वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, सब गा सकते हैं मेरे साथ।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर एक मन का कोना, नेक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और एक गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, सामाजिक गीत है। अगर सामने से मेरे जो बाबूजी खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन अगर पीठ न करके सीधे खड़े हों तो बहुत अच्छा रहेगा। कि कलाकार चाहता है कि मेरे सामने कोई ऐसे न खड़ा रहे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। बेटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दे फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये दिल की ये शौखियाँ सलाम की, यूं ही तो बात हो रही
तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। 2 मिनट ध्यान दे सकते हैं तो मैंने फिजी पे गीत लिखा है, अगर 1 मिनट सुन सकें तो गीत को आशीर्वाद मिलेगा। आई हैव रिटन वन सॉन्ग ऑन फिजी, इफ यू कुड गिव मी ओनली 2 minutes, आई विल बी इंस्पायर्ड, आई विल बी ऑनर्ड। ये मीडिया वाले 2 मिनट अगर मीडिया लेते रहे। एक गीत हमने लिखा है प्रवीण जी, डॉक्टर आशीष जी, धर्मा जी क्या बात है, हिज एक्सीलेंसी में जब 2 मिनट अगर आपको मिल जाए मुझे तो नचो नचो, क्योंकि आज भारत के संबंधों के घेरे, सबके दिलों में सपने सुन रहे, फिजी और भारत के संबंधों के घेरे, सबके दिलों में फिजी डे है, झूमो झूमो नाचो नाचो, झूमो झूमो नाचो गाओ। दुनिया में उपवास न जाने, झूमो झूमो नाचो गाओ, फिजी दिवस है नाचो गाओ, झूमो 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 नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ, क्योंकि आज फिजी दिवस है, फिजी दिवस है, क्योंकि आज फिजी झूमो झूमो नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ। ये देश वीर जवानों का अलबेलों का मस्ताना, देश तैयार ये देश दुनिया का करना। चौड़ी छाती वीरों की आँखें डॉक्टर आशीष जी ये लाइनें आपको समर्पित वही दीजिए वाली बहुत अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल किया है। क्योंकि आज फिजी दिवस है, क्योंकि आज फिजी डे है, क्योंकि आज फिजी दिवस, आज के पावन दिवस की फोटो भी हो रहा है यार, ये लाइट जल रही है खाली। नदियों का समुद्र का के नीत रे